ہر شخص چاہتا تھا امام کو پانی پلائے. زیادہ تر حضرت عباس پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتے تھے. جب کربلا کے میدان میں پیاس بڑھی ہے نا, پانی ختم ہوا ہے, تو بیٹی ہوتی ہے نا, اللہ آپ کی بیٹیوں کو سالم رکھے. سب سے زیادہ پریشان جناب سکینہ تھی. میرا بابا پیاسا بہت, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جب زلجنہ خبر شہادت پہنچانے کے لیے آیا ہے نا, تو زلجنہ جناب زینب کے خیمے پر نہیں گیا. زلجنہ وہاں نہیں گیا جہاں جناب ام لیلہ تھی. زلجنہ اس خیمے پر نہیں گیا جہاں جناب رباب تھی. زلجنہ ڈھونڈنے لگا سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زلجنہ اسی خیمے پر گیا جس خیمے کے اندر جناب سکینہ, اور باہر کھڑے ہو کر اس نے پیر مارنا شروع کیے جیسے ماتم کر رہا ہو. اپنے پیر زمین پر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو. جب زلجنہ کے پیروں کی آہٹ جناب سکینہ نے سنی نا, تو دوڑتی ہوئی باہر آئی. دیکھا بابا نہیں آئے ہیں, خالی گھوڑا آیا ہے. تو چند قدم آگے بڑھی ہیں, گھوڑے کے قریب آ کے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے کہنے لگی, یہ بتا میرے بابا کو پانی پلا کے مارا, میرا بابا پیاسا بہت. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. امام کا امتحان, اللہ نے امام کا امتحان شدت عطش کے ذریعے سے لیا. آپ رو رہے ہیں. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. نہیں معلوم میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا, کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہی بابا سے, کہہ نہیں پاتی تھی. بیوی سے بولا نہیں جاتا تھا کہ مجھے کچھ دے دیں. جب 30 دن نبی واپس آئے نا گھر میں, فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو, تم کہہ نہیں پا رہی ہو. تو جناب فضہ کی آواز آئی, یا رسول اللہ ذرا فاطمہ کا ہاتھ دیکھیے. اب جو نبی نے کہا نا فاطمہ ہاتھ دکھاؤ, نبی کی بیٹی نے جب نبی کو ہاتھ دکھایا تو ہاتھ چکی کی چوب سے زخمی ہو گیا. جناب فضہ کی آواز آئی, یا رسول اللہ فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے, یہ میرے حصے کا کام تو میں کرتی ہوں, جب ان کا دن آتا ہے تو یہ مجھے کام نہیں کرنے دیتی اور کہتی ہیں آج میرا دن ہے. میں کہتی ہوں آپ کا ہاتھ زخمی ہے, تو کہتی ہیں کل تم نے کر لیا تھا کام, وہ کل تمہارا دن تھا, آج میرا دن ہے, آج کا کام میں کروں گی. یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, فاطمہ کا ہاتھ زخمی ہے, میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنے بابا سے کنیز مانگ لوں, جو آپ کے دل میں بھی کام کر لیں, مگر یہ آپ سے کہہ نہیں پاتی. اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ سکی. مولا علی کہتے رہے فاطمہ کچھ مانگو, اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا. جس کے مزاج میں, آپ رو رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا, نبی نے رحمت سے کچھ دیر پہلے کہا فاطمہ بھرے دربار میں مدد مانگتا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فاطمہ بھرے دربار میں فضل مانگتا ہوں. میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی, کھڑی ہو گئی, فرمان لگی اللہ اور اللہ کا رسول اگر یہ چاہتا ہے تو میں مانگنے جاؤں گی. اور بیوی گئی ہیں فتح مانگنے کے لیے, جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا. حکم الہی ہے, نبی کا حکم ہے مانگنے جاؤ, نظام ہے, اس کے ذریعے سے کچھ روشن ہونی ہے باتیں. فاطمہ کو مانگنا ہوگا. جب بیوی گئی نا دربار میں, جب بیوی دربار میں گئی تو مولا علی کا وہی حال تھا جو اصغر کے لاشے پر حسین کا حال. کبھی دائیں جاتے تھے, کبھی بائیں جاتے تھے, کبھی آگے جاتے تھے, کبھی پیچھے آتے تھے. اس کیفیت میں, مجھے مسائل پورے پڑھنے دیں گے, اس کیفیت میں مولا کائنات ہے. جب جناب زہرا کو آتے ہوئے دیکھا, آگے بڑھ کے کہا فاطمہ بتاؤ کیا گزری تمہارے دربار میں. سنیں گے, رو رہے ہیں نا ہوگا. بیوی نے فرمایا علی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں دربار میں گئی, وہ تو میرے نانا بابا کا حکم تھا, میرے اللہ کا حکم تھا. افسوس اس بات کا نہیں ہے میں دربار میں گئی, افسوس اس بات کا ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. جس کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے, فرماتی ہے کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوا. سنیں گے دادا, پھر اس کے بعد کا جملہ فرماتی ہے افسوس اس بات کا بھی نہیں ہے کہ کوئی کھڑا نہیں ہوا, افسوس اس بات کا ہے مجھے جھٹلایا گیا. میں کہتی رہی میں غلط نہیں بولتی, میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا, کراچی سندھ میں ہے نا, میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. سندھی
जनाब जहरा का नाम नहीं लेता, सिंधी कहता है सच्ची जहर जिसे दरबार में कुचलाया गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा किसी को मिला से भाई में बहने बैठ के आज शब शहादत है। आप मौला अली का ज़ियारतनामा पढ़िएगा। मौला अली के ज़ियारतनामे में एक जुमला है, अस्सलामु अलैका या असबर साबिरीन। सलाम है उस अली पर जो साबिरों में बड़ा साबिर है। मैं कहूँगा मौला आप बड़े साबिर हैं या हुसैन बड़े साबिर हैं? थकेंगे नहीं, रोने वाले थकेंगे नहीं। मौला आपको सबसे बड़ा साबिर क्यों कहा है आइम्मा ने, इमामों ने आपको सबसे बड़ा साबिर क्यों कहा है? मुझे तो एक बात समझ में आती है, हुसैन से ज्यादा साबिर अली। दलील देने जा रहा हूं। जब मेरे मौला घोड़े से जमीन पर गिर गए, कौन? मौला हुसैन। जब घोड़े से जमीन पर गिर गए तो कातिलों का हल्का तंग होने लगा। कोई खंजर लिए हुए था, कोई तबर लिए हुए था, कोई नेजा लिए हुए था, कोई तलवार लिए हुए था। आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के बदन के करीब कातिल बढ़ने लगे तो एक सिपाही की आवाज़ आई, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह बर्बाद कर जाए। हुसैन के बदन से रूह निकल जाए तब हुसैन का गला काट देना। तो उन जालिमों में से एक ने मुड़ के देखा और कहा, कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा है? मेरे मौला के बदन में तहर्रुक नहीं था, मेरे मौला के बदन में हरकत नहीं थी। हुसैन करबला की जमीन पर है। वो जालिम कहने लगा, कैसे तय करें कि हुसैन जिंदा है? तो एक जालिम ने आवाज देकर कहा, मैं अभी एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठेंगे। मैं उस जालिम से कहूंगा, क्या तकलीफ देना चाहता है? कुछ ऐसा न कहे जिससे मेरा मौला को तकलीफ हो। मुड़कर लोगों ने देखकर कहा, बोलो क्या बोल रहे हो? तो उस जालिम ने आवाज लगा के कहा, हुसैन करबला की जमीन पर है और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया। बस ये जुमला सुनना था, इमाम ने कोहनियों पर बोल दिया। मेरा मौला हुसैन उठ के बैठ गए, हाथ सीधा में बुलंद किया, कहने मेरा गला काटो, फिर मेरी ज़ैनब पे हमला करना। मौला अली सलाम हो आप पर, आपके सामने ज़ैनब पे दरवाजा गिराया, आपके सामने ज़हरा को तमाचा मारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुझे एक मंजिल और लेनी है, गिरिया हो गया, मंजिल हो गई। मेरे एक मिलने वाले ने मुझसे कहा, मेरे एक मिलने वाले ने, अजरुकुम अल्लाह, तसल्ली करके रोएंगे, हौसला करके रोएंगे, मुझे एक मंजिल और आगे बढ़नी है। मौला के सामने जनाब पर हाथ उठाया गया और अली को पैगंबर की वसीयत ये थी। अली का इम्तिहान सुनिए ना, अली का इम्तिहान। मौला नबी ने बुलाकर कहा, मौला नबी ने बुलाकर कहा, अली जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं, मेरे बाद, मेरी रहमत के बाद तुम्हारी ज़ौजा पे हाथ उठाया जाएगा। अली तुम्हें तलवार नहीं उठानी है। अली मुझसे वादा करो, मुझ मुस्तफा से वादा करो। ऐ अली मुझ मुस्तफा से वादा करो, तुम्हारी फातिमा पे हाथ उठाया जाएगा। अल्लाह, जो एक अजनबी औरत को पिटता हुआ देखे तो खाना न खाए, उस अली के सामने सैयदा पे जलता हुआ दरवाजा गिरा। अली को नबी की वसीयत थी, अली तलवार नहीं उठाओगे। और अली बर्दाश्त कर गए। अली कहाँ थे? अली वहीं थे, देख रहे थे, नबी की वसीयत पे अमल कर रहे थे। एक मेरे मिलने वाले ने मुझसे कहा, मौलाना मेरी ज़ौजा के साथ इख्तिलाफ शदीद होता चला गया। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी कि मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। एक साहब कहते हैं कि मैंने अपनी ज़ौजा को एक तमाचा मार दिया। 3 दिन के बाद मैंने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो मेरी ज़ौजा, वो कहते हैं मेरी ज़ौजा मुझसे कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो आप गुस्से पर काबू ना पा रहे हो तो मारने से पहले जब आपका हाथ उठने लगे तो इतना ख्याल जरूर कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने न मारिएगा। वो कहते हैं मेरी बीवी ने कहा 3 दिन से मेरी बेटी बुखार में है और वो कहती है अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा, सुनेंगे
के साथ जा रहा था, एक शख्स ने मेरी माँ जहरा पे हाथ उठाया था, उनके हाथ से नाना की तहरीर छीनी थी। मैं जब इस गली से गुजरता हूँ मुझे वो मंजर याद आ जाता। असबर साबरीन इमाम, गिरिया हो गया, मजलिस हो गई। मेरे मौला 18वां रोजा अपनी बीबी उम्मे कुलसूम ने नमक रख दिया, दूध रख दिया, एक ज़र्फ में चौकी रोटी रख दी। तो बेटी को मुड़कर देखा और कहा, बेटा तुमने अपने बाबा को बुला दिया? तुम्हारे बाबा के दस्तरखान पे इतनी चीज़ें होती हैं? क्या बाबा मैंने बहुत कम चीज़ें रखी हैं। फरमाने लगे, नहीं दूध उठवा लो। उम्मे कुलसूम दूध उठा लो, मैं नमक और रोटी से इफ्तार करूँगा। मौला सारी रात इबादत में मसरूफ़ रहे। बीबी फरमाती हैं हर कुछ देर के बाद सहन में आते थे, आसमान को देखते थे और आसमान को देखकर जैसे कुछ तलाश कर रहे हो और फिर हुजरे में आ जाते थे। जब तीसरी मरतबा मेरे बाबा गए तो मैं करीब जाके खड़ी हो गई। मैंने सुना बाबा कह रहे थे, हाज़िही लैलतुल लती क़द वुइदतु, ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया। बीबी कहती है मैं परेशान हुई, मैंने कहा बाबा ये कौन सी रात है? कहा उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था माह रमज़ान की शब-ए क़द्र होगी, जब वो शब-ए क़द्र मुकम्मल होगी तो मेहराब में तुम्हारे सर पे तलवार मारी जाएगी। ए अली उस तलवार में तुम शहीद हो जाओगे। ए उम्मे कुलसूम तुम्हारे नाना ने उस रात की कुछ निशानियां भी बताई थी, आज वो निशानियां पूरी हो गई हैं। ये रात मुकम्मल होगी तो मेरे सर पे तलवार लगेगी। और फिर एक मरतबा हुजरे में गए, अमामा सर पे रखा, अब आप पहनने लगे। बीबी आके खड़ी हो गई, बाबा भाई हसन से कह दीजिए वो नमाज पढ़ा दे। बाबा आज आप घर में नमाज पढ़ लीजिए। बेटियां तो ऐसी होती है ना, बेटियां ऐसी होती हैं। एक मरतबा मेरे मौला ने बेटी को गौर से देखा, उम्मे कुलसूम जिस रात का मैं मुद्दतों से इंतजार कर रहा था, मैं तो इस सुबह का बड़ी मुद्दत से इंतजार कर रहा था, मुझे जाने दो, अब इस दुनिया में रहने का मजा नहीं है। मेरे मौला घर से निकल रहे हैं, मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया, बत्तखों ने मेरे मौला की हवा पकड़ ली। एक बत्तख ने आके मौला का दामन पकड़ लिया, एक बत्तख मौला के सामने आके बैठ गई। मौला रास्ता बदलने लगे, फिर उठ के आगे आ जाती थी तो जमीन पर बैठ गए। एक बत्तख पर हाथ रखकर फरमाने लगे, उम्मे कुलसूम अगर इन्हें दाना पानी दे सको तो रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। तुम इसकी जबान को समझ नहीं रही हो, तुम इनकी जबानों को समझ नहीं रही हो। ए उम्मे कुलसूम ये मेरा नौहा पढ़ रही है, ए उम्मे कुलसूम ये बत्तख है मेरा नौहा पढ़ रही है, ए उम्मे कुलसूम तेरा सारा घर मेरा नौहा पढ़ रहा है। ये कहकर मेरे मौला निकले हैं, मस्जिद में पहुंचे। इब्ने मुलजिम औंधा लेटा हुआ था, उसे उठाते हुए कहा उठ नमाज का वक्त हो गया है। अज़ादारों जो अली अपना कातिल अपने कातिल को बेनमाजी पसंद न करता हो, वो अपने चाहने वालों को बेनमाजी कैसे पसंद करेगा? मौला ने अपने कातिल को उठाया, मेहराब मस्जिद में गए। एक मरतबा पहली रकअत जमात हो रही है, पहली रकअत का पहला सजदा अली मुकम्मल करके सर उठाना चाहते हैं कि सर पर वो तलवार आगे लगी जो 1000 दिरहम में खरीदी गई थी। 1000 दिरहम का जहर खरीदा गया था, उसे आग में बुझा के जहर में बुझाया गया था। और जैसे ही अली के सर पे ज़रबत आगे लगी, बेसाख्ता अली ने कहा यहाँ ज़रबत लगी वहाँ ज़बान चली, उसको रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली आज कामयाब हो गया। अला क़द तहद्दमत अजलालुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मुमिनीन। आवाज़ें बुलंद होने लगी। एक मरतबा मस्जिद के अंदर कोहराम बर्पा हुआ। मौला हसन आगे बढ़े, बाबा को सहारा दिया, दीवार से टेक लगा के बिठाया, फरमाया बेटा हसन नमाज मुकम्मल करवाओ। मौला दीवार से टेक लगा के बैठे हुए हैं, इमाम हसन ने नमाज मुकम्मल करवाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई, इमाम हसन आगे बढ़े तो कहने लगे नहीं बेटा पहले मुझे एक बात का जवाब दो। मौला अली कह रहे हैं बेटा हसन ये बताओ मेरी पूरी दाढ़ी मेरे खून से रंगीन हो गई? तुम्हारे नाना ने मुझे बताया था अली तुम्हारी पूरी दाढ़ी तुम्हारे सर के खून से रंगीन। मेरे मौला हसन की आंखों में आंसू आए, बाबा आपकी दाढ़ी रंगीन हो गई, बाबा आपको खिताब मिल गया आपकी दाढ़ी आपके खून का। फरमान लगे बेटा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम रो क्यों रहे हो? मौला अब्बास आगे बढ़े, 17 या 18 साल का सन है मौला अब्बास का। आगे बढ़े, बाबा को जूतियां पहने लगे, आंखों में आंसू से आवाज दी अब्बास रो रहे हो? अब्बास गिरिया नहीं करो। एक मरतबा मोहम्मद हनफिया को देखा, उनकी आंखों में आंसू से आवाज देकर कहा मोहम्मद हनफिया रो रहे हो? नहीं आंखों से आंसू साफ करो, खबरदार बेटा रो नहीं। एक मरतबा हुसैन को देखा कि हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे तो मौला एक मरतबा कांप के रह गए, हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी गवारा नहीं था, हुसैन तुम्हें रोना तो तुम्हारी माँ भी नहीं देख पाती थी, हुसैन
खाली रस्ते में पेटों से कहते रहे ना गिरिया न करो, ज़ैनब को जब आते हुए देखा अली खुद रोना शुरू हो गया, ज़ैनब को देखा अली खुद रोना शुरू हो गए, सारा घर रोना शुरू हो गया। ज़ैनब का सर अपने सीने पर रख लिया, बहुत देर बेटी से लिपट के रोते रहे। अजब नहीं अली सोच रहे हो आज मेरी ज़ैनब कूफे बाबा के सीने पे सर रख गई है, कल एक दिन आएगा ज़ैनब के सर से चादर उतरे। अजरो कमल अल्लाह, एक मंजिल और मुझे लेने दीजिए, गिरिया हो गया। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे ना, मैं रोने वालों से एक जुमला कहकर मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। ताबूत को कांधा देते वक्त ख्याल रहे सर फटा हुआ है, ताबूत को कांधा देते वक्त ख्याल रहे अली का सर फटा हुआ है, अली का सर शिकस्ता है। अजरो कमल अल्लाह, बुला लिया सारे बच्चों को, ऐ बेटा हसन, मेरे दामाद मेरे सामने बैठे, मेरे पोते पोतियां, नावासे नवासियां, बहुएं बेटियां, दामाद सब मेरे सामने आकर बैठ जाएं, वसीयतें कर रहे हैं मौला अली। जब सारे बच्चे आकर बैठ गए ना तो फरमाया बेटा हसन मुझे जरा तकिया लगाओ, मुझे बिठाओ। मौला हसन ने तकिया देकर बाबा को बिठाया, बैठने के बाद फरमाया एक ज़र्फ़ में खाना और एक कूजे में पानी लेकर आओ। खाना पानी भी रख दिया गया। जब खाना पानी सामने आ गया फरमाने लगे बेटा हसन हुसैन कहाँ है? बराबर से इमाम हुसैन की आवाज़ आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हुआ हूँ। तो एक लुक़मा बनाया और मुंह में देकर कहा तुम्हारी माँ ने कहा था हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रखना, मेरे हाथ से एक गिलास पानी भी पी लो, मैं तुम्हारी माँ की वसीयत पे अमल कर रहा हूँ। मैं कहूँगा मौला आज आपने अपने हाथ से बच्चे को पानी पिला दिया, कल करबला का मैदान होगा, कहीं ज़ैनब दौड़ती नजर आएगी, कहीं ज़ैनुल आबिदीन आवाज देंगे और आवाज आएगी अला होगा मातम हुसैन।